आखिरी Assignment. सैल्यूट, आखिरी सैल्यूट और Tendagos. ठंडा Cold को though. खोल दो। ये चार शॉर्ट फिल्म है जो उनकी मोस्ट कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल शॉर्ट फिल्म्स हैं। और मेरे हिसाब से ये फिल्म उस टाइम पे जब उन्होंने ये स्टोरीज़ लिखी थी 1947 में, उस टाइम पर भी इतना बोल्ड सब्जेक्ट था कि अभी 2016 में भी देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत एडवांस्ड है। ऐसा नहीं है कि 1947 में लिखा था तो बहुत वैसा टाइप का है। और बहुत ही ऐसी रियलिटी है 1947 के पार्टीशन की, जो रियलिटी हमने ना कभी फिल्मों में देखी ना कभी किताबों में पढ़ी। सादिक हुसैन मंटू के हिसाब से जो रियलिटी है, वो रियलिटी के बारे में जब मेरे को पता चला और नरेशन हुआ, तो मेरे लिए तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। मैं तो सो भी नहीं पाता था रात को कि, क्योंकि मंटूस्तान जैसी फिल्म, मंटू की ऊपर फिल्म बनाना या उसकी कहानियों पर फिल्म बनाना अपने करियर को ख़तरे में डालने जैसा है। तो बहुत एक्साइटिंग था। और फिल्म कांस जा रही है तो ऑब्वियसली जब हमने फिल्म बनाई थी तो हम ये नहीं सोचते कि फिल्म कहाँ जाएगी, कांस जाएगी, ऑस्कर जाएगी या कहीं जाएगी या नहीं जाएगी। हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए फिल्म बनाते हैं, हमने कभी ऑडियंस की सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया नहीं है। बट अभी कांस जा रही है तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है वहाँ पर, तो वी ऑल आर वेरी हैप्पी। Tell us about your character. What character you are playing? My character in assignment. My character assignment, which I'm playing Shugra, is a kind of girl who is hiding herself inside the house, and she's trying to tell her brother, कि everything is fine outside. Please don't worry, don't be scared. And I'm trying to, and at the same time, I'm trying to convince my father, let's shift from here, let's go somewhere else, because मोहल्ले के जितने भी मुस्लिम हैं वो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, let's go, it will be safe for us. And already my brother, he's scared so much. Why we are hiding ourselves here if everybody already gone? So why we are only here? I'm trying to convince my father as well. So from inside she is very weak, but from outside she is pretending she is very strong, and she is just अगर रियल लाइफ की बात करें तो अपने कैरेक्टर से कितना कनेक्ट कर दिया आप? when Rahat told me about this character, and then I was telling Rahat, do you think I will be able to do this character? And I have already done before this one short films with Rahat, Asma. There again I was playing Kashmiri village girl, and he was saying, तुमने वो play किया तो ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी means हम workshop करेंगे, definitely you will be able to do, go for it. And then I was telling him that this is, okay, fine, assignment is okay, but you are, because he's for me, family and friend, and then so I was telling, it's very bold story which you have taken, so it is okay for the India. And he was saying, yeah, of course, but it is very bold compared to other films. And then and it's in the beginning it was very difficult for me and completely different from my character, what I am. And people, they always think I can't do such kind of Indian glam role, but I did. And definitely Rahat helped, and Virendra Saxena ji, he helped me a lot to do this role. Otherwise I don't think I would have done it such a good way. So they helped me a lot for this role. जैसे कि आप दोनों ने कहा कि ये काफ़ी बोल्ड रोल है फिल्म में, तो सबसे पहले आप बताइए कि कितना कंफर्टेबल थे और कैसे प्रिपेयर किया आपने खुद को? देखिए, मैं जैसे कि आपको आपने सबसे कहा कि पहले काफ़ी सोचना पड़ा आपको इस सबसे पहले आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ। एक्सक्यूज मी, यही क्वेश्चन से कंटिन्यू। ओके, स्टार्ट करें। जैसे कि आप दोनों ने कहा कि काफ़ी बोल्ड फिल्म है, बोल्ड किरदार है आप दोनों के, तो कितने कंफर्टेबल थे इस तरह के सीन्स देने में और कितना प्रिपेयर करना पड़ा आपको? सर, if you want to answer. Let me tell you, mine is not that bold. I have played a very subtle role. There are 4 stories, which is Kholdo, Assignment, Thanda Ghost, Aakhri and Akhri Salute. So from this all, my
pretty subtle. You know, I don't have that bold. I'm with my brother and father who is hiding herself inside the house and then trying to protect her family. And then, so I was trying to, you know, pretend my family, okay, I'm strong, and then just trying to tell my father, let's go somewhere else, and then let's save ourselves as well, like other, because there are lots of things going on outside, you know. देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं, बोल्ड का मतलब वो फिजिकल सेक्सुअल वाला बोल्ड नहीं है ये। अब बोल्ड का मतलब कि स्टोरी के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर इतनी सारी सच्चाइयाँ हैं। पार्टीशन के बारे में मैंने भी बहुत पढ़ा है, और इवन बच्चे बहुत छोटी छोटी 6th 7th 8th 9th की बुक्स में, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं भी पार्टीशन के बारे में जानता था कि जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लूट मार हुई, मर्डर हुए, सब चीज़ें हुई। लेकिन इतनी ज़्यादा इस लेवल तक गलत चीज़ें लोगों के साथ हुई हैं, ये मैं नहीं जानता था। बोल्ड का मतलब सिर्फ सच्चाई, इतनी बोल्ड सच्चाई है कि उसको बोलने के लिए या उसको दिखाने के लिए या उसको कहने के लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ये उस तरह की सच्चाई है कि मैं जितनी बार मंटू साहब देखता हूँ उतनी बार मेरे को हैंगओवर होने लगता है, मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। And that risk Rahat has taken. Really, it is very, definitely nobody other, if Rahat has not taken, nobody, I don't think anybody can make, you know, better than Rahat is. बिल्कुल। मंटू की सारी स्टोरीज बहुत बोल्ड होती हैं, पार्टीशन के ऊपर होती हैं, लेकिन ये 4 सबसे बेस्ट हैं, और इतनी ज़्यादा बोल्ड है कि आप 2016 में भी ये चीज़ें होते हुए इंसानों के साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि आपको डाइजेस्ट नहीं होगा कि ये सब भी हुआ था उस टाइम पे लोगों के साथ, या हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिस हिसाब से राहत ने दिखाए हैं, दैट इज़ रियली, यू नो, व्हिच इज़ समथिंग डिफरेंट, यू नो, ही हैज़ पोर्ट्रेट रियली वेल। अरे तो बड़ी गर्व की बात है यार, हम सब बड़े खुश हैं इस बात के लेकर के कि एक अच्छी फिल्म, और वो भी हम जैसे लोगों की फिल्म, राहत की फिल्म, जो कि बड़े दिल से फिल्म बनाता है, बहुत अच्छी कोशिश करता है अच्छी फिल्म बनाने की। जारी देखिए इसका क्या रेस्पॉन्स आता है लोगों के बीच में। इसमें बहुत सारी कहानियाँ, उनमें से एक कहानी है असाइनमेंट। उस असाइनमेंट में एक जज है, बेसिकली उस जज है, उसकी फैमिली की कहानी है। मैं उसमें जज बना हूँ, रिटायर्ड जज। एक दोबारा से जो बॉम्बे आकर के एक नयापन सा आ गया है, एक वही चीज़ें रिपीट होने वाली चीज़ें हैं, वही एक मतलब एक रट है बॉम्बे की, एक ख़ास तरीके की कहानियाँ होती है। तो सबसे हट कर के एक कहानी है, मंटू की कहानी है। दोबारा से वही दिन याद आ गए, कहने को देखे तो नहीं थे, लेकिन एक बार अपनी ज़िंदगी के पीछे जाने का एक मौका मिला उस कहानी को करते हुए, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा कि मतलब ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी देखा है लोगों ने, ये सब कुछ होते हुए। थैंक यू। भाई खान पीछे अनुषा मैडम थोड़ा पीछे आ जाओ। तू पीछे मैं उसी साइड चली जाऊंगी, मेरे को पहले लाइट तो करने दे, फोटो किसकी खींच रहा है। अच्छा ऐसे मार रहा है क्या बिना के? सामने देखिए, चलो सब लोग सामने देखिए, सब लोग सामने देखो, बहुत सारे टुकड़े कर दो, चलिए टुकड़े टुकड़े कर दो, राज भाई हाथ में केक उठा लो। ऐसा भी चलेगा। ऐसा भी पूरा आई होल्ड इट, क्या बात है। मनोज पीछे आप। पर्पल कलर पिक्चर बैनर की पहली भोजपुरी फिल्म बम बम बोल रहा है काशी का निर्माण हुआ है, और उसका प्रथम